आज क्लास में बच्चे कम है। नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट पिगमेंट, नेचुरल पिगमेंट इज दी बीटा लेंस। ठीक है, बीटा लेंस जैसे बीट्स होती है ना, रेड बीट्स, तो बीटा लेंस जो ग्रुप पिगमेंट्स दैट इज फाउंड इन द रेड बीट, and to some extent it is also found in cactus fruit, pokeberries and number of flowers जैसे कि bougainvillea. And this beetlein pigment are red and yellow. These resembles to anthocyanin and flavonoids in appearance. तो इसीलिए बीट चूंकि मेजर बीटा लेंस आर फाउंड इन द रेड बीट, that's why it is called as beta lanes. And these pigments are red and yellow in color. They resemble to anthocyanin and flavonoids in the appearance. But the structure of these beta lanes is different from anthocyanin. The beta lane structure contain nitrogen. The basic structure is given in the PDF file. You can see the structure. The beta lane contain two carboxyl group and amine. Nitrogen. The color of beta lane is due to their resonating structure. You can see here the alternating double and single bond. Due to this presence of conjugation, it gives the resonating structure. Two alkyl groups are attached to the nitrogen R and R1. These groups do not extend resonance. The compound is yellow. ठीक है, if R or R1 in the above structure does not extend resonance, then compound is yellow and is known as beta xanthin. Means beta xanthin belongs to the group beta lane. It gives a yellow color. For the yellow color, it is responsible for the yellow color is the beta xanthin. और अगर ये R and R1 extend the resonance, then the compound is called the beta cyanin, and this beta cyanin is yellow, is red in color. So beta xanthin is a yellow pigment and beta cyanin is red pigment, and these belongs to the beta lane group. The aglucone of the beta cyanin is red in red beet is the called beta-anidine. एंड इट्स ग्लूकोसाइड विद ग्लूकोज. ये जो आपका बीटा एग्लूकोन किसका, बीटा साइनिन का जो है रेड बीट में, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द बीटानिडिन. और इस बीटानिडिन में अगर आपका ग्लूकोज अटैच होता है, ग्लूकोसाइड लिंक बनाता है ग्लूकोज के साथ, देन इट इज कॉल्ड द बीटानिन. The beta lanes are stable in pH 4 to 6 and they are subject to degradation by thermal processing as in canning. यानी कि जो ये food containing beta lane pigments, they retain their color up to the pH 6, from means 4 to 6 pH, acidic pH में. जब highly acidic होता है, they degrade, and in alkaline medium degradation occurs, so they lose their color, and also they lose their color or they undergo the degradation by the thermal processing. जैसे canning process होता है ना, canning क्या होता है, जैसे फूड को जब स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो आपने देखा होगा कैन फूड मिलता है. बहुत सारे मिक्स फ्रूट आते हैं जो कैन में आते हैं, है ना. मिल्क मेड होता है, आपने देखा मिल्क मेड कैन में आता है. तो बहुत सारे स्वीट्स हैं जो कैन में आते हैं. तो जो कैनिंग में, कैनिंग इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे. तो कैनिंग प्रोसेस में जो है थर्मल प्रोसेसिंग यूज करते हैं, थर्मल टेम्परेचर हीट देते हैं. उस कैनिंग प्रोसेस में दीज बीटा लेन्स डिग्रेड देयर कलर, उनका डिग्रेडेशन होता है एंड दे लूज देयर कलर. नेक्स्ट पिगमेंट्स आर द क्विनोन्स एंड ज़ैंथेनोन्स. देखिए क्विनोन्स एंड ज़ैंथेनोन्स क्या है? A large group of pigments found in the cell sap of the flowering plant, fungi, bacteria, and algae are derivatives of anthraquinone, naphthoquinone, and benzoquinone. You can see the structure on the next page: anthraquinone, naphthoquinone, and benzoquinone.
ठीक है, ये जो डेरिवेटिव्स किसके डेरिवेटिव एंथ्राक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, बेंजोक्विनोन के जो डेरिवेटिव्स हैं, these comes under the quinones and xanthones. These group of pigments actually found in the cell sap of flowering plants, fungi, bacteria, and algae. A number of synthetic dyes also are the derivatives of the quinone. Synthetic dyes क्या है? Synthetic pigments which are synthesized or man-made. Pigments are the synthetic pigments. The natural quinones range in color from pale yellow to almost black. ठीक है, जो नेचुरल क्विनोन होता है इसका कलर कैसा होता है? पेल येलो से लेके ऑलमोस्ट ब्लैक. एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप्स ऑफ नेचुरल क्विनोन पिगमेंट्स. और उसके बाद जो नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे नेप्थोक्विनोन एंड थर्ड नंबर इज बेंजोक्विनोन. अभी आपको पहले बताया कि मोस्ट ऑफ द क्विनोन्स एंड ज़ैंथोन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द एंथ्राक्विनोन, नेप्थोक्विनोन एंड बेंजोक्विनोन. और उसमें भी जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नेचुरल क्विनोन पिगमेंट्स है दैट इज द एंथ्राक्विनोन. Most of the quinones are the derivatives of the anthraquinone. Next है आपका xanthones. Xanthones are a yellow pigments. तो quinones का कलर कैसा है? From plain pale yellow to black. And xanthone are a group of a yellow pigment. आप ये देख रहे हैं कि जो ये xanthones और quinones हैं, ये किसमें होते हैं? आपके प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी में. ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में नहीं होता है कलर. So then xanthones are a group of yellow pigments. And the commonly known member of this group is the mangiferin. है ना? mangiferin किसमें होता है? मैंगोज. तो मैंगो का रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू xanthones. ये क्या है? मैंजीफेरिन होता है ग्लूकोज के साथ क्या बनाता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो मैंगो का जो पिगमेंट है, पिगमेंट दैट प्रोवाइड color to the mango, that is the mangiferin. Next is the carotenoids. Next group of pigments is the carotenoids. These carotenoids also called as carotenes, and these are a group of lipid soluble hydrocarbon and their oxygenated derivatives which are called xanthophylls. किसका ग्रुप है? lipid soluble hydrocarbons and their oxygenated derivatives, xanthophylls. ठीक है, carotenoids or carotene, this name is actually originate from the carrot roots. गाजर का कलर कैसा होता है? कैरेट का कलर ना, जो कैरेट का कलर होता है उससे ही, कैरेट रूट से ही कैरोटेनॉइड डिराइव किया गया. बेसिकली दिस इज अ कैरोटीन. ये आप उसमें भी पढ़ चुके हैं ना अभी आगे, जो रेटिनॉल मिलता है आपको, विटामिन. सो दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, ये कलरिंग मैटर कैरेट रूट्स नेमली कैरोटीन, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट वर्ल्ड. These carotenoids are found in all green leaves, in most yellow and red fruits and many roots. ठीक है, कैरोटीन्स किसमें होते हैं? ग्रीन लीव्स में, येलो एंड रेड फ्रूट्स एंड मेनी रूट्स. And the color of egg yolk and some fish is due to the carotenoids. है ना? एग में जो कलर होता है, योक का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द carotenoids. The most widely distributed are the carotenoids found in the green leaves, lutein, violexanthin and neoxanthin. और इसके अलावा जो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं बट अकरिंग वाइडली, मींस अवेलेबल तो हैं बट देयर क्वांटिटी इज वेरी लेस. दीज आर द बीटा कैरोटीन एंड xanthin, zeaxanthin. अदर पिगमेंट्स लाइक लाइकोपिन, लाइकोपिन किसमें होता है? टमाटोज में. कैप्सिंथीन, कैप्सिंथीन इज फाउंड इन रेड पेपर एंड बिक्सिन in anato predominate in certain plants.
See the structure of carotenoid. Carotenoid consists of 8 isoprenoid units joined in such a manner that the arrangement of isoprene unit is reversed in the center of the molecule. ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट होता है और इस तरह से होता है कि सेंटर पे, नेक्स्ट पेज पे आओ जरा, बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर देखिए, बीटा कैरोटीन से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ल्यूटीन से मतलब कोई भी स्ट्रक्चर देखेंगे, बीटा कैरोटीन जैसे देखिए, इसमें हमने बीच में ग्रीन कलर के मैंने मार्क लगाया है बीटा कैरोटीन में, सेंटर में आपका मार्क लगाया हुआ है ग्रीन पेन से, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ रिंग से, और इसके बाद एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन, फोर, और ये जो फिफ्थ डबल बॉन्ड है यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क बनने लगा है, इसमें नहीं दिख रहा है, छोटा सा मार्क यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो फिफ्थ डबल बॉन्ड है, यहाँ से स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हुआ, और फिर से सेंटर में क्या है कि इस तरह से बेसिक कार्बन स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है इसका, कि जो आइसोप्रीन 8 यूनिट आइसोप्रीनॉइड यूनिट सेम, these isoprenal units are joined in such manner that the arrangement of isoprenal unit is reversed in the center of the molecule, रिवर्स हो जाता है। So you can see the structures, all the structures of the lutein, violexanthin, neoxanthin, beta carotene, and lycopene. This carotene exists in nature in free state in plant tissues as crystalline or amorphous solids or in a solution in a lipid media. ठीक है, plant tissues में these actually exist in plant tissues in a free state as a crystalline or amorphous solid or in solution in lipid media. यानी कि these are soluble in lipid. They also occur as esters or in combination with the sugar and proteins. कलर कैसे ओरिजिनेट होता है, देखिए जो कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट है ना, अल्टरनेट सिस्टम ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड, दिस इंडिकेट्स दी, actually this is responsible for the color of carotenoids, because a compound with double bonds can exist in two isomeric form, the cis and trans form. And in nature, carotenoids having only the trans configuration, which are stable structures. तो ये अगर रिवर्स हो जाएगा, ये देखिए ट्रांस आपको दिख ही रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो किस फॉर्म में, डबल बॉन्ड है, सेंटर से जब अलग करेंगे तो दीज आर द ट्रांस फॉर्म, सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, दीज आर द ट्रांस। तो नेचर में किस स्टेबल स्टेट यानी कि स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज दिस ट्रांस फॉर्म। तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में ही जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर। बीटा कैरोटीन किसका प्रिकर्सर है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। एक बीटा कैरोटीन कितने मॉलिक्यूल देता है विटामिन ए के, रेटिनॉल, इट गिव्स one beta carotene gives 2 molecules of vitamin A or retinol. The stability of carotenoid varies widely in foods. जो these compounds are unsaturated, है ना, these are containing double bonds, these are the unsaturated compounds. So these are easily susceptible to oxidation with concurrent loss of color. Easily they lose their color on oxidation. And oxidation takes place in the presence of enzymes and non-enzyme. यानी कि both type of oxidation occurs in these carotenoids, enzymatic oxidation and non-enzymatic oxidation. And due to the presence of enzyme and due to the जहाँ पर enzyme नहीं presence होते, केवल oxygen से भी they can easily oxidize. The pigments may auto oxidize by the reaction with atmospheric oxygen. ये बताएं non enzymatic में क्या होगा,
जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर रहा है, इट विल बी ऑटो ऑक्सीडाइज। And the rate of oxidation depends on light, heat, and presence of pro and antioxidants. और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रेजेंस में जो लाइपोक्सीजिनेजेस एंजाइम होते हैं, मींस व्हेन दिस beta carotene is oxidation of beta carotene presence it takes place in the presence of unsaturated fatty acids, and the lipooxygenases enzymes bring about the oxidative degradation of the carotenes. As I have already told you that these carotenes change their color in their isomeric form, like cis and trans configuration. तो जो ऑरेंज रेड कलर है किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू द ट्रांस, जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ऑरेंज रेड इन कलर, एंड दिस ऑरेंज रेड कलर चेंजेस टू लेमन येलो विच चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सिस का जो कलर होगा दैट इज लेमन येलो कलर, लेमन येलो कलर, एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एज ऑरेंज रेड कलर। और एसिड की प्रेजेंस में with temperature this cis trans configuration change is possible. What are the sources of the carotenes? So the carotenes obtained from natural extract from annatto, saffron, paprika, tomatoes, etc. These are used as food colorants. आप जब कुकिंग करते हो तो जो टमाटो की ग्रेवी होती है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, रेड कलर, है ना। तो जो फूड की प्रिपरेशन होती है उसमें कलर आया कहाँ से आया, अगर आप टमाटो नहीं डालते हो तो ग्रेवी व्हाइट येलो ड्यू टू दी जो आप स्पाइसेस यूज करते हैं, बट इफ यू प्रिपेयरिंग योर फूड इन प्रेजेंस ऑफ टमाटो विद द एडिशन ऑफ टमाटो तो क्या हो जाता है, रेड कलर। स्वीट्स जिनमें सेफ्रॉन ऐड करते हैं कलर कैसा आ जाता है, येलोइश, है ना। पुडिंग्स वगैरह घर में बनाते हैं सेफ्रॉन के साथ, these are the actually natural pigments। इसी तरह से जैसे ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर जब वेजिटेबल्स में यूज करते हैं, किसी भी स्टफ में यूज करते हो, कलर कैसा हो जाता है, रेड, है ना। सो दीज आर द नेचुरल पिगमेंट्स। सो एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम कैरेट्स, बटर फैट एंड पाम ऑयल which are yellow in color have beta carotene and thus show vitamin A activity। एक्चुअली इनमें विटामिन ए नहीं होता है, बटर फैट, पाम ऑयल, कैरेट्स में क्या होता है, येलो कलर के होते हैं, तो इसमें कहते हैं ना विटामिन ए रिच, इनको खाओ, गाजर को खाना चाहिए, विटामिन ए मिलता है यहाँ। बड़े लोग बोलते थे कि आंखें कमजोर नहीं होती, विटामिन ए होता है। एक्चुअली विटामिन ए नहीं होता है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए होता है कैरोटीन, और एक कैरोटीन बॉडी में जाके क्या, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए प्रोवाइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके सिंथेटिक कलर। सिंथेटिक कलर का अभी पीडीएफ नहीं भेजा मैंने आपको, अभी थोड़ा सा बता दे रही हूँ इसी। सिंथेटिक कलर पहले थोड़ा सा इसमें भी हम लोग बात कर लेंगे। कलरिंग एजेंट्स, एक्चुअली कलर्स का क्या काम होता है, जैसे फूड में एडिटिव्स होते हैं, है ना। तो कलर में क्या होता है, पिगमेंट्स और कलर्स जो है वो आपको कोई टेस्ट नहीं देते हैं, दीज आर यूज एज एडिटिव्स। तो सम नेचुरल पिगमेंट्स भी है, जो नेचुरल चीजें, जैसे स्पिनच यूज करोगे आप तो क्लोरोफिल की वजह से वेजिटेबल कैसी बनती है, ग्रीन कलर की बनती है। टमाटो यूज करते हो तो रेड कलर की ग्रेवी बनती है ना। केवल आप टमाटो नहीं यूज करते हैं केवल, तो आप जो स्पाइसेस यूज करते हैं टर्मेरिक, और उनका कलर टर्मेरिक जो है वो येलो कलर देता है ना। तो ये पिगमेंट्स ये क्या कर रहे हैं, दीज आर द नेचुरल पिगमेंट जो फ्लेवर भी देते हैं और साथ में कलर भी प्रोवाइड करते हैं, बट कलर का फ्लेवर से कोई संबंध नहीं है। तो ये एक्चुअली फ्लेवर के साथ साथ कलर जो आता है फूड में, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर फूड। तो ये दीज जितने भी अभी आपने पढ़े, दीज ऑल आर द नेचुरल पिगमेंट्स। तो
जो आपके कलरिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दीज इंक्लूड्स एक्चुअली द कलर स्टेबलाइजर्स, कलर फिक्सेटिव एंड कलर रिटेंशन एजेंट्स. A number of synthetic colors also available, and these synthesized colors, these can be natural and synthetic both. तो नेचुरल कलर्स कौन से? विच आर एक्सट्रैक्टेड or synthesized from the natural sources. Those pigments are called as the natural pigments. है ना? जबकि जो कलर होता है it does not add any nutritive value to the food. केवल कलर को फूड के अपीयरेंस के लिए और फूड के डिग्रेडेशन को चेक करने के लिए जो है वो कलर एक्सपेक्ट किया जाता है. तो पहले तो केवल नेचुरली पिगमेंट्स या डाइज यूज होते थे, जैसे स्पिनच जूस, मैरीगोल्ड फ्लावर, गेंदे का फूल होता है उससे येलो कलर, है ना? और ग्रास, दीज वर यूज टू ऑब्टेन ग्रीन, येलो एंड रेड कलर. स्पिनच जूस, ग्रास, मैरीगोल्ड फ्लावर, कोकिनियल फ्लावर, इन सब इससे किसके लिए? स्पिनच से, ग्रास से आपको ग्रीन कलर, मैरीगोल्ड से येलो कलर, और कोकिनियल से आपको रेड कलर मिलेगा, है ना? इनकी जगह क्या, दिस दिस गिव प्लेस टू द सिंथेटिक डाइज ऑब्टेन फ्रॉम कोल tar. आपने पिगमेंट्स पढ़े हैं ना लास्ट उसमें सेमेस्टर में? तो the synthetic colors excel in the coloring power, color in uniformity, color stability and cost. जो सिंथेटिक कलर होते हैं यानी कि जो आर्टिफिशियल मैनमेड कलर्स होते हैं उनकी कलरिंग कैपेसिटी भी, कलर क्योंकि फास्ट होते हैं और यूनिफॉर्म कलर प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर मोस्ट स्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव. वो टेम्परेचर के साथ नेचुरल पिगमेंट कलर चेंज नहीं करते, है ना? जैसे आपको बताया कि एक्स्ट्रा कुकिंग अगर कर दोगे तो नेचुरल पिगमेंट क्या हो जाएगा? टमाटो ग्रेवी बनाई, एक्स्ट्रा कुकिंग कर दी, ब्लैक हो जाएगी. लेकिन अगर नेचुरल पिगमेंट होगा तो वो कलर अपना एक्स्ट्रा कुकिंग पे चेंज, सॉरी सिंथेटिक पिगमेंट होगा तो एक्स्ट्रा कुकिंग पे डज नॉट, मींस इट इज स्टेबल, कलर इज स्टेबल, इट रिटेन इट्स कलर, एंड दीज आर आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि चीपर. जैसे एग्जांपल आपको दे, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जिलेटिन डेजर्ट, कैंडीज, बेकरी गुड्स, these are some foods which are colored with the coal tar dyes, है ना? इनको कौन कौन से? कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जिलेटिन, डेजर्ट, कैंडीज एंड बेकरी गुड्स, these are colored with the coal tar dyes. है ना? और this coal tar compounds are found to be carcinogenic, cancer creating agent. So in many countries the coal tar dye as food additive is restricted. ठीक है, कुछ कंट्री ने तो कम्प्लीटली बैन कर दिया है, जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो है वो इस फूड में हमको फूड आइटम रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि इसमें ऐड करना है किसमें नहीं करना. कुछ ने कम्प्लीटली जो है वो इसको बैन कर दिया है. सिंथेटिक फूड कलर्स आल्सो इंक्लूड सम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज आयरन ऑक्साइड, क्या देता है? रेडनेस. टाइटेनियम ऑक्साइड गिव्स इंटेंसिफाई ब्राइटनेस. And except this, the number of natural food colors extracted from seeds, flowers, insects, and foods are also used as coloring agents. ठीक है, किससे किससे नेचुरल जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है? नंबर, सीड से, फ्लावर से, इंसेक्ट से जो है वो नेचुरल पिगमेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. And the best known and most widespread red pigment is Bixin, Bixin. ठीक है, सबसे ज्यादा जो वाइडली स्प्रेड रेड कलर का पिगमेंट है दैट इज Bixin.
और ये किससे मिलता है? सीड कोट होता है बिक्सा ओरेलिना। ये पॉड प्लांट होता है साउथ अमेरिका में, छोट है ना, पॉट प्लांट होता है, लिपस्टिक पॉट प्लांट होता है साउथ अमेरिका में। उसका सीड होता है ना, सीड कोड का मतलब सीड के ऊपर का छिलका, उससे जो है रेड कलर का पिगमेंट निकलता है। सबसे ज्यादा यही इसी पिगमेंट को रेड कलर के लिए इस नेचुरल पिगमेंट इज यूज्ड। इसके अलावा अनाटोडाई, येलो टू रेड कलरिंग मटेरियल, ये किससे? ऑरेंज रेड पल्प ऑफ सीड्स। ठीक है, ये भी सीड से, अनेटो फ्रूट होता है, उसके सीड से जो है वो ऑरेंज रेड कलर का, येलो टू रेड और ऑरेंज रेड कलर मैटर जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एनेटो को किस लिए यूज करते हैं? एनेटो इज ऑल्सो यूज एज अ कलरिंग मैटर इन बटर, चीज, मार्गरीन एंड अदर फूड्स। बटर आपने देखा होगा, जो मार्केट में अवेलेबल कमर्शियल बटर है वो किस कलर का होता है? येलो कलर का। चीज किस कलर का होता है? रेड कलर का, सॉरी, येलो कलर का। बटर येलो, चीज भी येलो कलर। ठीक है, मार्गरीन, इन सब का जो कलर होता है, इनमें कलरिंग एजेंट की तरह कलरिंग पिगमेंट कौन सा यूज किया जाता है? अनाटो। तो अनाटो, विक्सिन, दीज आर दी वाइडली यूज्ड नेचुरल पिगमेंट्स। के अलावा जो येलो कलर डेवलप और येलो कलर कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कैरोटीन, है ना। और येलो इसको क्या बोलते हैं? इट इज यूज्ड इन मार्गरीन। जो कैरेट से कैरोटीन येलो कलर मिलता है, दैट नेचुरल, दीज आर द नेचुरल पिगमेंट्स, दीज आर यूज्ड इन द मार्गरीन। नेक्स्ट नेचुरल कलर आता है, दैट इज सेफ्रॉन, केसर ना। ये जो है वो आपका सेफ्रॉन इज द फ्लेवरिंग एंड कलरिंग बोथ एजेंट्स, इट हैज बोथ प्रॉपर्टीज। सेफ्रॉन हैज इट्स peculiar flavor and a color. So saffron has both flavoring and coloring properties and has been used for the coloring foods. इसके अलावा नेचुरल पिगमेंट में टर्मरिक, turmeric that gives the yellow color, and the natural red color cochineal obtained from the extraction of female insect, है ना, कोकस कैक्टाई, ग्रेप के स्किन से निकलता है। जो रेड वाले ग्रेप्स आते हैं ना, उसके स्किन से एक्सट्रैक्ट रेड कलर मिलता है। एंड कैरेमल, द ब्राउन कलर ऑब्टेन फ्रॉम द बर्न शुगर। शुगर को जब आप बर्न करा देते हो तो क्या बन जाता है? ब्राउन कलर की हो जाती है। शुगर को ऐसे ही आप पॉट में डालिए, इसको हीट करिए तो ब्राउन कलर की हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द कैरेमल। तो कैरेमल जो है वो मतलब दैट दैट गिव्स अ ब्राउन कलर। तो वही ब्राउन कलर जो किसके लिए? कैरेमल के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा देयर आर सम मोर सिंथेटिक पिगमेंट्स एंड डाइज which we will discuss in the next class. So today we have covered all the natural pigments. I will give you a table of the synthetic colors in which the compounds, by synthetic color क्या है? These are the chemical compounds which gives chemical compounds के dyes, है ना, synthetic dyes। और कौन सी dyes? Which are edible, which can be used in food, dyes which are allowed to add in the food। ऐसे तो बहुत सारे पिगमेंट्स है सिंथेटिक, आपके पिगमेंट्स है सिंथेटिक, बहुत सारे सिंथेटिक डाइज है, बट ऑल कैन नॉट यूज बाई को डाइंग पर्पज से यूज होते हैं। ऐसा तो है नहीं जो टेक्सटाइल के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम हीटिंग पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, फूड एज अ फूड एडिटिव यूज कर सकते हैं, नहीं ना। सो सिंथेटिक, यहाँ पर आपको जो सिंथेटिक डाइज पिगमेंट्स पढ़ना है, दीज पिगमेंट्स आर ओनली दोज chemical compounds or those pigments which are allowed as a food additive। जो किसकी तरह अलाउड है? विच आर अलाउड एज अ फूड एडिटिव और अलाउड टू ऐड इन द
सो दिस इज ऑल अबाउट दी नेचुरल पिगमेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, सो ओवर फॉर टुडे।